Hello students, I am Priyanka Mane from SGM College Karad. Yesterday we are studied about the computer new chapter which is networking technology. In that yesterday we are studying about the networking communication. Today we are study about the networking topology. First of all, what is mean by networking? Networking means transmitting a data or a information from one node to the another node means by the networking. And networking topology means the arrangement of various elements in a computer network which are nothing but the networking topology. Networking topology means arrangement of various elements in computer network means the networking topology. The arrangement of various elements का मतलब है कि arrangement of nodes and links. Arrangement of nodes and links. Nodes मतलब हमारे पीसी और links मतलब केबल. So networking topology का मतलब है arrangement of nodes and arrangement of links in a computer network which are nothing but the networking topology. In an exam they will ask the 4 marks question on this networking topology. They will ask define topology and explain star topology, bus topology and the ring topology. So theoretical definition of networking topology is the network contain many nodes are physically interconnected in a certain configuration to provide an efficient communication. This configuration of networking is called as networking topology. The networking contain many nodes are physically interconnected. हमारे नेटवर्क में जितने भी नोड्स है और जितने भी पीसीज है वो फिज़िकली इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से. मतलब वो सारे पीसीज एक दूसरे से लिंक से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि केबल से कनेक्टेड होते हैं और उनका एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन होता है. कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है या तो ये जो नोड्स है वो या स्टार में कनेक्टेड होते हैं, रिंग में कनेक्टेड होते हैं या फिर बस में कनेक्टेड होते हैं. और वो क्या प्रोवाइड करते हैं कि वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं. दिस इज़ नोन एज द नेटवर्किंग टोपोलॉजी. There are basically three types of networking topology. These classification are based on a LAN network. LAN network we are studied in yesterday. LAN का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क. LAN में क्या होता है कि it will cover a small geographical area. So there are 3 types of networking topology. These classification are classified according to LAN network. ये कौन से टाइप है? फर्स्ट टाइप है स्टार टोपोलॉजी. फर्स्ट टाइप है स्टार टोपोलॉजी. सेकेंड टाइप है रिंग टोपोलॉजी एंड लास्ट टाइप है बस टोपोलॉजी. ये तीन टाइप है. कौन से 3 टाइप है? स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी. In that we will first discuss about
the star topology. First we will discuss about the star topology. Here I draw a diagram of star topology. In that diagram you can see all the nodes are connected to a central node. All these nodes are connected to one central node. This central node called as a controlling PC or a controlling node. Here you can see this is node A, node B, node C, node D, node G and node F. All these nodes are connected to the one central node which is the node E. All these nodes are connected in such a way that all these nodes are connected in a star format. So this topology is called as a star topology. Suppose I want to transmit a data from node A to node C. So the node A is my transmitter and node C is my receiver. Node A is the transmitter and node C is the receiver. So जब भी कभी मुझे नोड ए से नोड सी में डेटा ट्रांसमिट करना है तो जो कोई भी मेरा डेटा है, सपोज मेरा डेटा है 1010, ये मेरा डेटा है, ये डेटा ट्रांसमिट होना चाहिए मुझे सी में. तो फिर जो ए नोड है वो जो कोई भी डेटा है 1010, ये डेटा पहले ट्रांसमिट करेगा कंट्रोलिंग पीसी को यानी कंट्रोलिंग नोड को, और कंट्रोलिंग नोड जो कोई भी डेटा है मतलब 1010 ये ट्रांसमिट करेगा नोड सी को. अब इसमें ये क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि जो डेटा है वो सिर्फ सी में ही क्यों चला गया, यहाँ पर और कोई जगह यानी कि बी, डी में या जी में और एफ में क्यों नहीं चला गया. जो ये डेटा है हमारा 1010, इस डेटा के साथ उस पीसी का और या फिर उस नोड का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है. उस एड्रेस के साथ ये हमारा डेटा अटैच होने के कारण सिर्फ हमारा जो डेटा है वो सी में ही चला जाएगा. अगर मुझे डेटा ट्रांसमिट करना होता बी से डी में, तो अगर यही डेटा होता 1010, ये डेटा मुझे ट्रांसमिट करना होता बी से डी में, तो 1010 डेटा के साथ अटैच होता डी का एड्रेस और ये अब हमारा डेटा डी में ट्रांसमिट हो जाता. सो हमारा यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी के कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेज है, हम वो डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एडवांटेज. एडवांटेज क्या है इसमें? फर्स्ट एडवांटेज ये है कि हमें डेटा ट्रांसमिशन के लिए बहुत ज़्यादा वक्त या टाइम डिले नहीं होता. सो फर्स्ट हमारा एडवांटेज है नो टाइम डिले. फर्स्ट हमारा एडवांटेज है नो टाइम डिले. हमें कोई भी ट्रांसमीटर टू रिसीवर कोई भी डेटा ट्रांसमिट करते वक्त ज़्यादा टाइम नहीं लगता. और दूसरा एडवांटेज ये है कि हम एक्स्ट्रा एडिशनल पीसी हम इसमें ऐड कर सकते हैं. अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पीसी भी ऐड कर सकती हूँ. तो एडिशनल पीसी और नोड आर एडेड इन स्टार टोपोलॉजी. ये दो इसके एडवांटेजेस हो गए. डिसएडवांटेज क्या है?
डिसएडवांटेज क्या है? पहला इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है? अगर हमारा कंट्रोलिंग पीसी या सेंट्रल पीसी डैमेज हो गया या फिर फेल हो गया तो हमारा होल सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा। अगर कंट्रोलिंग पीसी बिकम फेल then whole system will fail। अगर हमारा सेंट्रल पीसी और कंट्रोलिंग पीसी फेल हो जाता है तो होल सिस्टम जो है वो फेल हो जाती है। कौन से एडवांटेज और डिसएडवांटेज है? पहला एडवांटेज ये है कि हमें कोई भी डेटा ट्रांसमिट करते वक्त ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और दूसरा ये एडवांटेज है कि अगर मुझे इसमें एडिशनल नोड ऐड करना है तो मैं इजीली कोई भी एडिशनल नोड ऐड कर सकती हूँ। और डिसएडवांटेज ये है अगर मेरा कंट्रोलिंग पीसी अगर फेल हो जाए तो मेरा जो होल सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। अब नेक्स्ट टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। The next topology is the ring topology. Here I am drawing a diagram of a ring topology. Here you can see that all the PC or all the nodes are connected in a ring format. So this topology is called as a ring topology. The node A or a PC A is connected to node B. Node B is connected to node C. Node C is connected to the node D, and node D is connected to node E, and node E is again connected to the node A. So all these PCs are connected in a ring format. So this topology is called as the ring topology. Again, suppose I want to transmit a data from node B to node D. Suppose I want to transmit a data from node B to node D. At that point, node B is my transmitter and node D is my receiver. Suppose I want to transmit a data from node B, which is 1011, is I want to transmit a data 1011 to node B to node D. At that point, the node B transmit this data first to the node C. जो कोई भी हमारा डेटा है 1011, it will first transmit to the node C. हमारा जो डेटा है वो पहले C में चला जाएगा और C आइडेंटिफाई करेगा कि उसके साथ जो 101 के साथ जो भी डेटा के साथ जो भी एड्रेस अटैच है वो उसका खुद का है या नहीं। अगर वो एड्रेस उसका नहीं है तो वो क्या कर देगा कि वो डेटा है जो वो फिर आगे फॉरवर्ड कर देगा। सो अगेन नोड C, it will transmit the data to the node D. Node D receive the data 1011 and it will again check the 1011 के साथ जो एड्रेस अटैच है वो उसका है या नहीं। अगर उसका वो एड्रेस है तो वो क्या कर लेगा, वो डेटा रिसीव कर लेगा। इसी तरह से वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। हमने देखा कि ये सारे जो पीसी है और नोड है वो एक रिंग के कनेक्शन के फॉर्म में कनेक्टेड है और जो डेटा है वो 1 बाय 1 आगे पीसी में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो अगेन उसके कुछ एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेज है। फर्स्ट एडवांटेज ये है कि उसमें
ये जितने भी हम इसमें पीसी ऐड है, ये सारे पीसी क्या है, इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल नोड और इंडिविजुअल पीसी, जितने भी हमारे यहाँ पर ऐड नोड्स है वो क्या है, इंडिविजुअल है। मतलब स्टार टोपोलॉजी में क्या था कि एक सेंट्रल पीसी से और कंट्रोल पीसी से हमारे सारे नोड अटैच थे, लेकिन रिंग टोपोलॉजी में ऐसा कोई भी कंट्रोलिंग पीसी या फिर कंट्रोलिंग नोड नहीं है, ये सारे एक दूसरे से अटैच है। सो ये सारे क्या है, इंडिविजुअल नोड और इंडिविजुअल पीसी। अगेन सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है, फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि इट रिक्वायर्ड मोर टाइम। मतलब हमारा जो कोई भी जो डेटा था 1011 ये पहले ट्रांसमिट हो गया सी को, उसके बाद ट्रांसमिट हो गया डी को। अगर मुझे ये डेटा ई में ट्रांसमिट करना होता या फिर ए में ट्रांसमिट करना होता तो मुझे पहले बी से डेटा सी में ट्रांसमिट होता, फिर डी में, फिर ई में, फिर ए में। इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि अगर वन ऑफ द नोड बिकम्स फेल, अगर कोई भी एक नोड फेल हो जाता है तो होल सिस्टम क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। When one of the node become fail, then whole system will fail। अगर कोई भी एक नोड इसमें फेल हो जाता है तो अगर आगे ए सपोज बी नोड फेल हो जाता है तो ए में और सी में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, तो फिर हमारा होल जो सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे बर्स्ट टोपोलॉजी। आगे की टोपोलॉजी है बर्स्ट टोपोलॉजी। इन दिस डायग्राम यू कैन सी द होल नोड्स, node A, node B, node C, node D and node E are connected to a common bus. This bus is nothing but a cable। मतलब हमारे नेटवर्क में जितने भी नोड्स है या फिर जितने भी पीसीज है वो सारे के सारे पीसी एक बस से कनेक्टेड है, यानी एक केबल से कनेक्टेड है। सपोज आई वांट टू ट्रांसमिट अ डेटा from node A to the node D. At that point node A is my transmitter and node D is my receiver. So I want to transmit a data 1010. Again I want to transmit a data 1010 to the node D. इसमें क्या होगा कि जब हमें नोड ए से नोड डी में डेटा ट्रांसमिट करना है तो नोड ए क्या करेगा, जो उसके पास जो डेटा है वो सीधा ट्रांसमिट कर देगा बस को, यानी केबल को, और वो केबल क्या करेगी या बस क्या करेगी, वो डेटा रिसीव कर लेगी और वो जो डेटा है वो सारे पीसी को या फिर नोड को ट्रांसमिट कर देगी। मतलब हमारा जो डेटा है 1010 ये ट्रांसमिट हो जाएगा बी में, सी में, डी में और ई में, और वापस से ये सारे जो नोड है वो आइडेंटिफाई करेंगे इसके साथ जो एड्रेस होगा, इसके आगे जो लिखा होगा एड्रेस, वो एड्रेस होगा वो चेक करेंगे कि वो एड्रेस हमारा है या नहीं। अगर नहीं है तो वो डेटा रिसीव नहीं करेंगे। इसमें से सिर्फ डी जो होगा वो डेटा रिसीव करेगा, क्योंकि
1010 के साथ उसका एड्रेस अटैच होगा, इसलिए सिर्फ डी जो होगा वो डेटा रिसीव कर लेगा। मतलब बस क्या करती है कि जो भी डेटा उसे रिसीव हो जाएगा वो रिमेनिंग जितने भी नोड्स है उसमें वो डेटा ट्रांसमिट कर देगा, और जिसका भी वो एड्रेस होगा वो नोड क्या करेगा, वो डेटा रिसीव कर लेगा। उसके बाद हम जानेंगे कि बस टोपोलॉजी की एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट एडवांटेज है कि इसमें कोई भी कंट्रोलिंग और सेंट्रल नोड नहीं है। इससे क्या होगा कि सिस्टम फेल होने का कोई भी चांसेस नहीं है। नो कंट्रोलिंग नोड, फर्स्ट एडवांटेज क्या है, इसमें कोई भी कंट्रोलिंग या नोड नहीं है, इसकी वजह से हमारा सिस्टम फेल होने के कोई भी चांसेस नहीं है। सेकेंड एडवांटेज क्या है कि रिंग टोपोलॉजी में क्या था, अगर हमारा कोई भी नोड फेल हो जाता तो हमारा पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अगर इसमें से कोई भी नोड, सपोज हमारा सी नोड फेल हो जाए तो इस टोपोलॉजी पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे, सिर्फ सी को ही हटवा देंगे या फिर उसकी जगह कोई और नोड को ऐड कर देंगे। सो अगेन दूसरा एडवांटेज क्या है, अगर कोई भी नोड फेल हो जाएगा तो इसमें उस सिस्टम में कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। थर्ड एडवांटेज क्या है कि इससे बस टोपोलॉजी में लेस टाइम रिक्वायर्ड होगा, लेस टाइम रिक्वायर्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन। हमने देखा कि बस टोपोलॉजी में और स्टार टोपोलॉजी में और रिंग टोपोलॉजी में हमने देखा कि उसमें डेटा ट्रांसमिशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा। ये थे बस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस। सो थैंक यू।